Students, today we are going to start our next topic, that is divisibility. Now, first of all, what is your natural numbers? Natural numbers are the numbers starting from 1, 2, 3, starting from 1, and these numbers are nothing but the counting numbers. कौन से होते हैं natural numbers? जो 1 से start होते हैं, like complete numbers 1, 2, 3, and these are also called counting numbers. Fine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These all are the natural numbers. These are the counting numbers which starts from 1. Now after natural numbers, if I include 0 in this set of natural numbers, अगर मैं natural numbers में 0 ऐड कर दूँ तो वो set क्या बनेगा? 0, 1, 2, 3 and so on. ये set क्या बनता है हमारे पास? This is a set of whole numbers. अगर हम natural numbers के set में एक ही number और ऐड कर रहे हैं, that is 0, तब जो सेट बनेगा वो सेट कौन सा होता है? होल नंबर्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर इंटीजर्स? अगर हम होल नंबर्स में सारे होल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये भी सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स भी, तो जो सेट बनेगा दैट सेट इज सेड टू बी सेट ऑफ इंटीजर्स एंड वी मार्क दिस सेट एज Z. Fine. So what is this set? This is set of integers. Clear? Now we discuss what do you mean by divisibility. Integers के set पे हम division कैसे define करते हैं? Division हमेशा एक non-zero integer से होगी. Fine. So if A is any non-zero integer and B is any integer, then अगर हम कहते हैं A divides B, A B को divide कब करेगा? If there exists an integer c, अगर हमें एक ऐसी integer c मिल जाए such that b can be written as a into c, तब हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? a divides b. Now this symbol is new for you. अभी तक आप क्या लिखते आते हो? b, या आप अगर लिखते हो a by b, this is a fraction. Fine. इसका मतलब हम b से a को क्या कर रहे हैं? Divide. Now this is a symbol which is used to represent that this number divides this. This is different from this. ठीक है, इसमें B से division होती है, यहाँ A से division की बात हो रही है. This is a symbol A which shows that A divides B. क्या कहेंगे इसको? इसको कैसे पढ़ना है आपने? A divides B. Here division किससे कर रहे हैं हम? A से. These two are not same. A divides B and this is A by B. These two are two different things. Fine. So now onwards in number theory we'll use this notation which says that A divides B. A B को divide कब करता है? हम integers के set में division की बात कर रहे हैं, तो A और B दोनों integers हैं, but जिससे हम divide कर रहे हैं that must be a non-zero integer. Non-zero integer से अगर किसी भी integer और को divide करेंगे, वो divide कब करेगी? अगर इंटीजर्स के सेट में ही एक ऐसी इंटीजर एग्जिस्ट करती है such that this b can be written as a into c, then we say that a divides b. Fine. Now there are some properties of divisibility. First is every non-zero integer a divides 0. हर non-zero integer 0 को हमेशा क्या करती है? Divide. अब divisibility का मतलब क्या है कि अगर हमें एक ऐसी इंटीजर मिल जाए, 0 या कोई भी इंटीजर मिल जाए सच दैट हमने क्या कहना है? a 0 को डिवाइड करता है, यानी कि 0 कैन बी रिटन एज a इंटू दैट नंबर. इज इट पॉसिबल? यस. क्यों? 0 एक ऐसी इंटीजर है सच दैट a इंटू 0 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दिस a डिवाइड्स 0. फाइन. सो हमें क्या प्रूव करना था? हर नॉन जीरो इंटीजर a 0 को क्या करती है? डिवाइड. वी नो दीज रिजल्ट्स बट नाउ वी हैव टू प्रूव इट. हर नॉन जीरो इंटीजर 0 को डिवाइड करता है. यस. हाउ? डिवीजन कब पॉसिबल है? अगर ये नंबर कैसे लिखा जाए? a इंटू सम इंटीजर, देन दिस नंबर डिवाइड्स दिस. फाइन. यही कहा ना हमने डेफिनेशन में. a b को डिवाइड कब करेगा? अगर b को हम कैसे लिख सकते हैं? a इंटू सम इंटीजर. नाउ a 0 को डिवाइड कब करेगा? अगर 0 को लिख सकते हैं a इंटू सम इंटीजर. यस. व्हाट इज दैट इंटीजर? 0. वी कैन राइट a इंटू 0 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब a डिवाइड्स
0. Fine. Now what is the next result? Next property is 1 divides every integer a. अब हमें प्रूव करना है कि 1 हर इंटीजर को डिवाइड करता है. इसका मतलब हर इंटीजर a कैसे लिखा जाना चाहिए? 1 into some integer. Is there exists some integer such that a can be written as 1 into that integer? Yes. कौन सा इंटीजर? a. अगर a इंटीजर है तो we can write a as 1 into a. It means 1 divides a. Fine. Just apply the definition of divisibility. 1 a को डिवाइड कब करेगा? अगर a 1 into something के फॉर्म में लिखा जाएगा. और you can say a is multiple of 1. a can be written as multiple of 1. Here we can write a as multiple of 1. Therefore 1 divides a. Fine. So 2 new things you are going to study. One is this symbol and second is how to write down the divisibility equation. ये division की equation को कैसे लिख रहे हैं हम. Division है वही चीज़, सिर्फ उस चीज़ को लिखने का मेथड हमने थोड़ा सा वेरी किया है. क्या करते थे हम डिविजन एल्गोरिथम में? अगर a को b से डिवाइड किया सो देयर एग्जिस्ट सम रिमाइंडर एंड सम क्वोशंट. a b को डिवाइड कब करता था? अगर रिमाइंडर क्या होता था? 0. सो सेम थिंग इज हियर. व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन a कैन बी रिटन एज b इनटू q. वही हम कह रहे हैं कि b a को डिवाइड कब करेगा? इफ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर q सच दैट a कैन बी रिटन एज b इनटू q. देन b डिवाइड्स a. Fine. I hope these two properties are clear. Next is every non-zero integer divides itself. हर non-zero integer अपने आप को divide करती है. क्या मतलब? Let a be any non-zero integer. Now we have to prove. क्या prove करना है हमें? a divides itself. ये कब होगा? अगर एक ऐसा इंटीजर मिल जाए सच दैट a कैसा लिखा जाए? अपने ही मल्टीपल में. इज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट a कैन बी रिटन एज a इनटू दैट इंटीजर? यस. विच इंटीजर? 1. वी कैन राइट a एज a इनटू 1. सो a अपने आप के मल्टीपल में लिखा गया. और यू कैन से a डिवाइड्स इटसेल्फ. फाइन. एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ. Now next property is if a and b are integers and a divides b, then a also divides b into c for every integer c. क्या प्रूफ करना है हमें इसमें? अगर a और b कोई भी दो इंटीजर्स हैं और a b को डिवाइड करता है तो a b के सारे मल्टीपल्स को भी क्या करेगा? डिवाइड. फाइन. व्हाट इज b into c? It's a multiple of b. So basically you have to prove that if a divides b, then it divides all the multiples of b also. Let's prove it. हमें given क्या है? It's given to you that a divides b. If a divides b, this means there exists an element d, integer d, such that b can be written as a into d. Now what you have to prove? You have to prove a divides bc. b के मल्टीपल्स को भी क्या करेगा? a डिवाइड. सो वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय c. इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सो वी कैन चेंज द ब्रैकेट. c से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद वी कैन राइट a इंटू डी सी इज इक्वल टू बी सी. फाइन. ना जब d और c दोनों इंटीजर्स हैं देन d इंटू सी भी इंटीजर होगा. इट मीन्स हमें एक इंटीजर मिल गया सच दैट a इंटू सम इंटीजर इक्वल टू बी सी. इट मीन्स बी सी इज मल्टीपल ऑफ a. और यू कैन से a डिवाइड्स बी सी. फाइन. So how you will remember this result? If any number divides other number, then that number divides multiple of this also. अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस दूसरे नंबर के मल्टीपल्स को भी क्या करेगा? डिवाइड. यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट इन दिस वे. ये नहीं याद रखना ए बी की फॉर्म में. याद रखना कि आपने कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके मल्टीपल्स को भी क्या करेगा? डिवाइड. फाइन.
हम इन रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे आगे थ्योरम्स में, रिजल्ट्स आगे प्रूफ करने के लिए, इसलिए आपको सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए. Next is if A, B, C are integers such that A divides B and B divides C, then A also divides C. क्या दिया हुआ है हमें? It is given that A divides B and B divides C. Then you have to prove A C को भी क्या करेगा? Divide. अगर A किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो नंबर किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है, then A also divides this number. How will you prove? First we apply the definition here. A divides B means there exists some Q belongs to integer such that B can be written as A into Q. Fine. Now B divides C means there exists some integer Q1 such that C can be written as B into Q1. Clear? Now put the value of B from here put कर, ठीक है. B की वैल्यू पुट की A Q Q1. It means C can be written as A times Q into Q1. It means Q और Q1 दोनों इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा. It means there exists an integer Q into Q1 such that C can be written as A into this integer. What it means? A divides C, or you can say C is a multiple of A or A divides C. Now next property is if A and B are natural numbers such that A divides B and B divides A, then A is equal to B. अगर दोनों नंबर अपने एक दूसरे को डिवाइड करते हैं then those two numbers must be same. कब? If those two are natural numbers. क्या रिजल्ट है बेसिकली ये? अगर कोई दो नेचुरल नंबर्स दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? डिवाइड, then the numbers should be same. How will you prove it? First, it is given to you that A divides B. This implies there exists an integer C such that integer, इस केस में हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही मिलेगा. डिवीजन जिस सेट में बात हो रही है हम वहीं पे C भी वहीं पे क्या करना चाहिए? लाई करना चाहिए. तो इसका मतलब हमें एक नेचुरल नंबर ऐसा C मिलेगा such that B can be written as A into C. Now next is given to you B divides A. Then there exists again a natural number D such that A can be written as B into D. ठीक है, हम रिपीट करें. क्या कहा हमें? A और B नेचुरल नंबर्स हैं. A B को डिवाइड करता है और B A को डिवाइड करता है. अगर A B को डिवाइड करता है नेचुरल नंबर्स के सेट में तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर C मिलेगा such that B can be written as A into C. और अगर B A को डिवाइड करता है तब भी हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा D, कुछ भी D नंबर होगा such that A can be written as B into D. Now we substitute the value of one of them in the second equation. मैं B की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? A into CD. फाइन. इट मीन्स अगर मैं इसमें A कैंसिल आउट करूँ तो क्या बचेगा? 1 is equals to CD. Now C and D both are natural numbers and their product is equals to 1. A कैंसिल आउट हो जाएगा ना तो यहाँ क्या बचेगा? 1 is equal to CD. Now C and D both are natural numbers. कौन से दो ऐसे natural numbers हैं जिनका प्रोडक्ट 1 होता है? The only two natural numbers whose product is 1 is equal to 1. इसका मतलब C भी 1 होगा और D भी क्या होगा? 1. अगर C 1 है तब B A के क्या हो गया? इक्वल. अगर D भी 1 है तो B A और आपस में क्या हो गए? इक्वल. इसका मतलब अगर कोई दो नेचुरल नंबर्स दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? सेम नेचुरल नंबर्स. दे कैन नॉट बी डिफरेंट. बट सेम रिजल्ट अगर A और B इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर्स की जगह पे क्या हो? इंटीजर्स हो, such that both divides each other, then they are either same or they are negative of each other. Either A equal to B plus B में A equal to B and A equal to minus B. हम इसी क्वेश्चन में हमने सिर्फ कहाँ चेंज किया कि A और B क्या हैं? इंटीजर्स. अगर ये इंटीजर्स होंगे तो C और D भी कहाँ आएंगे? इंटीजर्स में. A B को डिवाइड करता है तो ऐसा इंटीजर मिल जाएगा such that B is equals to AC. And B A को डिवाइड करता है तो ऐसा एक इंटीजर मिल जाएगा such that A equal to BD. Fine. Now again substituting the value of B in this equation, we get A is equals to ACD. Now A cancel out, we get CD equal to 1.
अब ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं, बिकॉज नाउ सी एंड डी आर इंटीजर्स, ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1 हो, जो मल्टीप्लाई करने पे 1 आए? कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? आइदर बोथ आर इक्वल टू 1, या तो सी और डी दोनों 1 होंगे, और बोथ आर इक्वल टू -1। अगर दोनों 1 हैं तो क्या होगा? a इज इक्वल्स टू b, फाइन। और अगर दोनों -1 है तो a इक्वल टू माइनस ऑफ b। सो इट मीन्स अगर दो नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और वो दोनों नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, देन दे आर सेम, बट इफ दे आर इंटीजर्स देन they are either equal or they are negative of each other. Fine. Now next result is a very important result. If a and b are integers such that a divides b and modulus of b is less than mod a, जिस नंबर को a डिवाइड कर रहा है उसकी मॉड a से मॉड से क्या है? लेसर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से कम है, then this number b can never be different from 0. It is always 0. Or you can say a number divides a number whose modulus is less than this number, or you can say it is a lesser number than a. अगर हम पॉजिटिव में कर लें उस नंबर को तो a b से क्या है? छोटा। कोई भी नंबर अपने से छोटे किस नंबर को डिवाइड करेगा इंटीजर्स के सेट में? सिर्फ 0 को। 0 के अलावा किसी भी अपने से छोटे नंबर को कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। सो व्हाट इज दिस रिजल्ट? कि कोई भी नंबर अपने से छोटे, छोटे क्यों कहा? बिकॉज मॉड ऑफ बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए। कोई भी नंबर अपने से छोटे मॉडुलस वाले इंटीजर को डिवाइड करता है तो वो नंबर जो b है वो क्या होगा? हमेशा 0, यानी कि अपने से छोटे सिर्फ 0 को ही डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा और किसी इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकता। हाउ विल यू प्रूव? It is given to you that a divides b. It means there exists an integer c such that b can be written as a into c. Fine. अब c जो है वो 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। We claim that c is equals to 0. हम कहते हैं कि c 0 ही होगा। क्यों? अगर सपोज c 0 नहीं है, हमें प्रूफ करना है कि c is equals to 0, क्योंकि अगर c 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली a into 0 is 0, means b is 0. So we claim c should be equal to 0. हम ये claim कर रहे हैं, means we have to prove this. हम इससे उल्टा लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं suppose c is not equal to 0. अगर c 0 नहीं है और it's an integer, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। क्यों? इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अगर मैं मॉडुलस चेक करूं तो या तो 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा। फाइन। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मॉड ए। मॉड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। नाउ व्हाट इज दिस? इफ आई सी फ्रॉम हियर व्हाट इज मॉड बी? दैट इज इक्वल्स टू मॉड ए सी, विच इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड सी। So this is nothing but mod a into mod c, which is equals to mod b. So what you get from here? Mod b is greater than equal to mod a, which is a contradiction. क्यों contradiction? It is given to you that mod b is less than mod a. हमारे पास क्या आया? Mod b is greater than equal to mod a. It means when c is non-zero, then mod b must be greater than equal to mod a. इसका मतलब this contradict this fact. It means c cannot be non-zero, it must be equal to 0. और अगर c 0 हो गया तो b क्या होगा? a into 0 is 0. So what is the actual result? कि कोई भी नंबर अगर अपने से छोटे मॉडुलस वैल्यू को डिवाइड करता है तो वो नंबर b क्या होगा? 0. अपने से छोटे सिर्फ 0 को ही पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन कर सकता है और किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। अपने से छोटे सिर्फ 0 को ही डिवाइड कर सकते हैं। फाइन। Next is if a, b, c, x, y are integers such that a divides b and a divides c, then a divides bx plus cy also. क्या रिजल्ट है? अगर a दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो उनके मल्टीपल्स देन उनके सम को भी क्या करेगा? डिवाइड। If a divides b and x is an integer, so bx is multiple of a. This result we have already done कि अगर a किसी b को डिवाइड करता है तो उसके मल्टीपल को भी क्या करेगा? डिवाइड। फाइन। देन
अगर a b को डिवाइड करता है तो b x को भी क्या करेगा, डिवाइड. सिमिलरली इफ a डिवाइड c, दिस इम्प्लाइज a डिवाइड c इंटू y ऑल्सो. ठीक है. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस डिवाइड द सम ऑफ द टू ऑल्सो. हाउ विल यू प्रूव? नाउ अगर a b को डिवाइड करता है तो वी कैन राइट b इज इक्वल्स टू a इंटू सम q. मल्टीपल को डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया x से. सिमिलरली a डिवाइड c, मतलब c कैन बी रिटन एज a इंटू सम q1. मल्टीपल के लिए y से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. नाउ वी ऐड दीज टू, व्हाट वी गेट, bx प्लस cy इज इक्वल्स टू aqx प्लस aq1y, which can be written as a times qx plus q1y. It means this number is a multiple of a into something लिखा गया. So what it means, a divides bx plus cy. So what it actually means कि अगर a किसी दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके प्रोडक्ट और फिर उनके मल्टीपल्स और उनके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड. फाइन. सिमिलरली इसकी बजाय हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, if a divides b and c both, then it divides their sum as well as their difference. ठीक है. Let's prove this. How will you prove it? a divides b means b can be written as a into some q. a divides c, मतलब c can be written as a into some q1. Now we have to show a divides b plus c, so we calculate b plus c. b plus c is a times q plus a times q1, which is equals to a times q plus q1. It means this number is a multiple of a. a into something लिखा गया ना, इसका मतलब ये a का क्या है, multiple. और you can say a divides b plus c. सेकेंड, अगर b माइनस c को शो करना है तो यहाँ ऐड करने की बजाय इनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट. Now we can further write it as q minus q1 times a. It means a का मल्टीपल b minus c है, तो it means a divides b minus c. Fine. So you have to remember this result in this way. If a divides two numbers, then it divides their sum, their difference, their multiples. सबको क्या करता है वो, डिवाइड. Fine. So this is all about today's lecture. Thank you very much.